What's up everyone, Praful here and welcome to another episode of the 915 Daily. Today is 14th October. Today is a Tuesday, Nifty's expiry. The expiry was quite volatile just like we discussed yesterday. तो हमने ये डिस्कस किए थे अगर मार्केट फ्लैट खुलेगा तो देन मार्केट के पास एक वाइड रेंज ओपन हो जाएगा एंड स्ट्रैडल ऑलमोस्ट 100 के आसपास रहेगा. सो इट्स गोना बी वेरी हार्ड फॉर ऑप्शन राइटर्स टू मेक मनी एंड द एग्जैक्ट थिंग प्लेड आउट वेयर द मार्केट टैंक्ड 250 points from its high and again it recovered 150 points towards the close. But silver continues to grab the headlines where even today a lot of silver ETFs were trading as high as 6 to 7%. Now some of the silver ETFs have given more than 30% returns over the last 6 or 7 sessions and they are trading at a significant premium compared to spot or futures. Because there is a lot of scarcity in the physical market, a lot of silver traders would be short squeezed and people are expecting if at all this short squeeze continues, we can see another 15 to 20% rally led by this short squeeze by the month end. And another important thing is the speculation that is going around regarding the weekly expiries. And now some of the media outlets are using this to kind of manipulate individual stocks, and this is probably the 4th or 5th time they are spreading source-based news over the social media only to manipulate few particular stocks. This has become a weekly shenanigans where every week one media outlet comes and says, oh, weekly expiries are here to stay, and that particular stock rallies. And on the next day, another media outlet comes up with a news saying that SEBI is coming up with a consultation paper to remove the weekly expiries. And this is creating a lot of commotion in few particular scripts. I hope the regulator takes notice of this and they take appropriate action. Of course, कल सेंसेक्स की 1 DTE है and after a wide range day like today, because we are again trading at somewhere around 25,100 levels, तो कल के लिए क्या प्लान ऑफ एक्शन बनेगा, कल के लिए पोजिशनिंग क्या रहेगी, मेरा ट्रेड प्लान क्या रहेगा. लेट्स गेट टू द टर्मिनल एंड लेट्स एनालाइज. ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट विद द स्पॉट चार्ट एनालिसिस. एंड अगर निफ्टी की डेली चार्ट पे बात करें सो यस, वी हैव सीन अ स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल, एक बेरिश कैंडल देखने को मिल चुका है एंड the range is also quite wide. This is almost 250 point, 1% range का candle है. I mean 1% range का candle इतना बड़ा नहीं है, but we are trading somewhere around 10 wicks. तो 10 wicks पे 1% range का जो intraday candle, it is quite a bit. Basically जो realized volatility है, it is much higher than the implied volatility. We were also discussing that जब तक market ये जो एक horizontal channel बना है, इससे बाहर नहीं जाती है, either on the upside or on the downside, it's very hard to find a clear cut direction. And also the markets have become extremely mean reverting with a lot of overextensions. मतलब markets यहाँ से यहाँ के बीच almost 1,200 points का range है and even monthly straddles will offer you only somewhere around 600 to 700 points premium on the straddles. And आप even monthly straddles भी आप trade करना चाहते हैं, then the markets will force you to delta hedge both on the upside and on the downside. And by the last week, the straddles would be somewhere around 200 points, and 200 points का जो straddle पूरा week के लिए मिलता है, but markets 250-300 points move एक दिन में कर देता है. So markets need a catalyst. एक कैटलिस्ट के साथ मार्केट मूव करने वाला है because this range is very hard to get taken out unless we have a catalyst, either a positive news or a negative news. अगर आप बारीकी से देखोगे तो we are forming some sort of a lower high and lower low. पहली बार यहाँ से इस पॉइंट से सेल ऑफ आया था एंड सेकेंड टाइम इस पॉइंट से सेल ऑफ आया एंड थर्ड टाइम इफ़ यू वर टू बिलीव दैट यहाँ से मार्केट और नीचे जाने वाला है, देन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिस इज़ अ हायर हाई एंड हायर हाई एंड हायर हाई. द बुल्स आर नॉट एबल टू take out the previous highs, and jab bears, they are getting activated much before these levels are breached, much before these levels are tested. So if at all this is the situation, then probably we might see some sort of a चैनल पैटर्न, आई मीन एक ट्रायंगल पैटर्न बना के मार्केट नीचे जाने का चांसेस है. बट अगेन दैट इज़ टू स्पेकुलेटिव लॉन्ग टर्म के लिए. लेट्स नॉट गेट इनटू दैट, लेट्स गो टू स्मॉलर टाइम फ्रेम्स. अगर स्मॉलर टाइम फ्रेम पे बात करें तो येस, वी हैड डिस्कस दिस. अगर मार्केट फ्लैट खुलता है देन मार्केट के पास एक वाइड रेंज खुल जाता है एंड इट्स गोना बी एक्सट्रीमली हार्ड फॉर द ऑप्शन राइटर्स. मेरे लिए भी रेंज इतना ही था कि 25,300 से लेके 25,150 तक, बट द मार्केट्स ब्रोक 150 लेवल्स एंड वहाँ से भी एक 100 पॉइंट का फॉल देखने को मिला. बट आफ्टर दैट देयर वाज अ शार्प
शॉर्ट कवरिंग थोड़ा बहुत वापस मार्केट्स रेंज के अंदर आ गया एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे दिस 2 PM के बाद जो गामा मूव्स थे दे वर क्वाइट डेडली वेयर द ऑप्शंस वर ऑलमोस्ट डबलिंग एंड ट्रिपलिंग विद इन 15 minutes विंडो. सो इट वॉज नॉट एन ईजी डे फॉर द ऑप्शन राइटर्स बट नाउ यू कैन सी दैट मार्केट ने एक प्रॉपर प्राइस एक्शन पैटर्न बनाते बनाते नीचे आ चुका है. बट इफ़ यू कंसिडर दिस एज द एक्सपायरी रिलेटेड मूव एंड अगर कल फ्लैट भी या थोड़ा बहुत गैप डाउन भी खुल जाता है देन दिस लो इज़ एक्सपेक्टेड टू बी टेकन आउट इन द फर्स्ट हाफ इटसेल्फ. सो अगर वॉल्स की बात करें तो वी सॉ something very interesting today because I was expecting the walls to open at somewhere around 90 but the walls opened somewhere around 100. मतलब मार्केट फ्लैट ओपन होने के बावजूद भी स्ट्रैडल्स 100 पे ओपन हुए एंड 100 के बाद येस इनिशियल थोड़ा बहुत डीके आया एक 10 पॉइंट्स बट आफ्टर दैट वी सॉ अ वेरी गुड स्ट्रैडल स्पाइक फ्रॉम ऑलमोस्ट 90 टू 115 116 117 लेवल्स. जनरली ऐसे जो स्ट्रैडल स्पाइक होता था वो जेन स्ट्रीट के टाइम पे होता था जहाँ पे पूरा दिन मार्केट दोनों तरफ ऊपर एंड नीचे चॉप करता था एंड स्ट्रैडल कभी गिरता नहीं था एंड द स्ट्रैडल यूज टू कोलैप्स. लिटरली द स्ट्रैडल यूज टू मेल्ट पोस्ट 2 PM. बट टुडे it was something similar but not exactly the same because almost 12 o'clock तक ये जो लो बना था 920 के आसपास जो 930 के आसपास जो स्ट्रैडल लो बना था वो स्ट्रैडल का लो टूटा नहीं था almost 12 o'clock तक and post 12 o'clock yes the straddle started melting but at the same time the realized moves were also quite a bit. तो अगर सेंसेक्स की बात करें बिकॉज टुमारो इज सेंसेक्स 1DTE एंड वी कैन सी दैट देर इज़ अ वेरी गुड प्रीमियम. जनरली 1DT के पहले सेंसेक्स में यूजुअली 420 430 पॉइंट्स देखने को मिलता था. इफ़ यू गो बैक एंड वॉच ऑल आवर प्रीवियस वीक्स एनालिसिस तब 1DT से पहले सेंसेक्स क्लोज होता था समवेयर अराउंड 420 430 पॉइंट्स एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग अरे 400 पे भी ओपन होता है तो वी कुड एक्सपेक्ट समवेयर अराउंड 320 पे क्लोज मिलेगा. अराउंड 80 पॉइंट्स का पोटेंशियल वॉल क्रश मिलेगा. बट टुडे वी आर सीइंग दैट देयर इज़ अ गुड अमाउंट ऑफ प्रीमियम. काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम्स दिख रहा है. ऑलमोस्ट 620 पॉइंट्स का प्रीमियम दिख रहा है. आई थिंक दिस इज़ बिकॉज वी सॉ अ वाइड रेंज डे एंड मार्केट्स को एक ब्रीदिंग स्पेस देने के लिए a lot of sellers are not willing to sell the options at whatever prices. So we even saw some sort of a spike all the way from 580 to 630, almost 50 point का straddle spike देखने को मिला towards the end of the day and you can see that throughout the day the straddle saw a good amount of spike. So कल के लिए even if we open somewhere around 600 or even 570 it will be a decent opportunity for short wall at least for me. But again spot कहाँ पे open होता है उसके बेसिस पे भी थोड़ा बहुत डिस्टेंस लेना पड़ेगा. अगर स्पॉट पे बात करें तो कल के लिए हमारे पास मेरे हिसाब से 3 सिनेरियोज है and all those 3 scenarios are I would say equally probable. First thing is a फ्लैट ओपनिंग. अगर एक फ्लैट ओपनिंग हो जाता है देन प्रॉबली द रेंज फॉर टुमारो वुड बी दिस एंड दिस. तो ये रेंज बन सकता है 81,600 से लेके 82,300 तक. अराउंड 700 पॉइंट का रेंज है बट ऑफकोर्स ये 700 पॉइंट पे पहले 20-30 मिनट्स में मार्केट कहीं ना कहीं एक बार डायरेक्शन दे देता है तो देन यू विल गेट अ लिटिल ईजियर टू राइट द ऑप्शंस और टू ट्रेड डेल्टा न्यूट्रल. थोड़ा मीन रिवर्शन ट्रेड्स को भी ट्रेड करने पसंद कर सकते हैं. बट इफ एट ऑल द मार्केट ओपन्स अ लिट ऑफ अ गैप डाउन, थोड़ा बहुत गैप डाउन खुल जाता है देन आई एम एक्सपेक्टिंग दिस लो टुडेज लो टू बी टेकन आउट विद इन द फर्स्ट 30-35 मिनट्स. बट अगर 30-35 मिनट्स के अंदर लो टेकआउट नहीं होता है देन इफ़ द मार्केट्स ओपन समवेयर हियर एंड देन पहले फर्स्ट 15-20 मिनट्स में मार्केट इधर ऊपर आ जाता है देन अगेन वी कैन ट्राई टू ट्रेड द रेंज एंड मीन रिवर्शन ट्रेड्स को ले सकते हैं. तो मेरे लिए ये जो एरिया बनता है दिस इज़ अ वेरी गुड एरिया रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से. तो यहाँ पे आई कैन स्टार्ट एडिंग द कॉल शॉट्स कर सकते हैं विथ अ स्टॉप लॉस समवेयर अराउंड दिस लेवल. तो ऑफकोर्स पोजिशन साइजिंग इज़ द की. तो अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो देन गो विथ पोजिशन साइज विच यू कैन हैंडल. एंड अगर आपको डेल्टा न्यूट्रल ट्रेड करना है देन आई वुड एक्सपेक्ट द मार्केट्स टू ओपन अ बिग गैप अप. एक बड़ा गैप अप ओपन होना चाहिए तब हमको एक डेल्टा न्यूट्रल ट्रेड्स पॉसिबल है. कल भी मैंने ये बताया था कि अगर मार्केट इसके आसपास ओपन होता है देन
a delta neutral trade would be valid because markets के लिए ये range बन जाएगा छोटा range and इस range में delta neutral trades would make sense, but the moment we open flat or even a gap down markets के लिए बड़ा range खुल जाएगा and एक wide range day बन सकता है. That's what we discussed. तो कल के लिए भी approach same रहने वाला है. अगर एक बड़ा gap up खुलेगा then markets के लिए range बनेगा this and this, which is a decent range for any delta neutral option writer to hold on to. But if at all a market opens flat or a minor gap down, I'd not trade short wall, but I'd rather try to take a mean reversion trade from the call side. Call की तरफ से मैं mean reversion trade plan करूँगा. Put की तरफ से I'll not be too aggressive in taking mean reversion trades. Yes, यहाँ पे एक सपोर्ट नज़र आ रहा है, बट इफ़ अट ऑल यहाँ पे फ्लैट ओपन होके यहाँ पे आते हैं देन प्रॉबली दिस विल ऑल्सो बी टेकन आउट टुमारो, बिकॉज जिस प्रकार से मार्केट आज प्राइस एक्शन दिया है सो वी कैन सी दैट देयर हैज़ बीन अ लॉट ऑफ सेलिंग स्ट्रेंथ आया है एंड एवरी पुल बैक वॉज सोल्ड इन टू. सो ऑल्सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट दिस लेवल it translates to somewhere around 25,000 levels in Nifty, and 25,000 levels already यहाँ से 2 बार यहाँ पे टेस्ट कर चुका है एंड यहाँ से मार्केट ने ऊपर जा चुका है. तो इफ़ एट ऑल वी फॉल to this level, so this time I'm expecting these levels to be taken out. So I'm expecting a mean reversion trade from the call side. तो this area मेरे लिए calls short करने के लिए ये एरिया मेरे लिए कॉल शॉर्ट करने के लिए आइडियल रहेगा इफ एट ऑल वी ओपन गैप डाउन और अ माइनर गैप अप. बट अगर एक बड़ा सा गैप अप खुल जाता है यहाँ पे, अगर मार्केट्स खुल जाता है देन प्रॉबली वी कैन हैव अ short wall kind of a trade structure for tomorrow. So that's my trade plan for tomorrow, guys. तो कल हम मिलते हैं मार्केट्स के बाद. Till then, take care and bye-bye. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.